Hello friends, I am Samir Avasthi, Associate Professor in Department of Computer Science and Engineering from Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology, Lucknow. Today I am going to teach you object oriented system design and my topic is behavioral modeling. In this behavioral modeling, there are some topics like use case, state machine diagrams we have studied. Now, moving toward the first slide. What is behavioral modeling? Basically, behavioral modeling and diagram visualize, specify, construct and document the dynamic aspect of the system. The behavioral diagram are categorized in two ways, means use case diagram, interaction diagram. Basically, it are four types: use case diagram, interaction diagram, state chart diagram and activity diagram. We can study one by one all these four topics. First of all, use case diagram. A use case describe the sequence of action a system perform, yielding visible result. It shows the interaction of things outside the system with the system itself. Use case may be applied to the whole system as well as the part of the system. Behavioral modeling in use case, we are use case are of three types like use case actors, relationship, and relationship. In this relationship we use dependency, generalization and association. Use case diagram are used to model the context of a system by enclosing all the activities of a system within a rectangle and focusing on the actor outside the system by interacting with it. To model the requirement of a system from the outside point of view. तो बेसिकली यूज केस मॉडल, यूज केस को डायग्राम को कैसे यूज करते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग में, वो हमें समझना है. नाउ लेट अस कंसीडर एन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हाउस सिस्टम एंड वी एज्यूम दैट द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द सिस्टम. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको बताता हूँ यूज केस को. द ट्रेडिंग हाउस हैज़ various transaction with two type of customer, the individual customer and the corporate customer. Once the customer place an order, it processed by the sales department and the customer is given the bill. Now, the system allows the manager to manage customer account and answer any query posted by the customer like this. This is an example of use case diagram. In this there is a customer, this is a customer, we use this actor here and this customer has there are two type of customer. First is the individual customer, this one is the individual customer and second one is the corporate customer. When in automated trading house system, this customer when this accept order and process order and generate bill, the sales it goes to the sales department. When this customer gives an order, then it move toward the sales department. And if other type of customer, that is corporate customer, and there are two type of customer initially and manage customer account and handle queries. These different type of things are handled with the manager. So, this is a type of example of automated house, automated trading house system. Now, moving toward the interaction diagram. There are four types of things. First one is the use case and second is the interaction diagram. Interaction diagram depict interaction of object and their relationship. They also include the message passed between them. There are two type of interaction diagram. First is basically sequence diagram and other one is the collaboration diagram. In sequence diagram and collaboration diagram, I explain you with these two topic in my previous video. Here we give the some basic outline. Interaction diagram are used for the modeling, the control flow by timing order using sequence of diagram and the control flow of organization using collaboration diagram. तो यहाँ पे sequence diagram और collaboration diagram का क्या यूज है. टाइम ऑर्डरिंग की बात जहाँ पे भी आती है वहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम हो गया और जहाँ पे बात आती है कंट्रोल फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हम कोलैबोरेशन डायग्राम की हेल्प लेते हैं. स्टेट मशीन डायग्राम. इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन इन डिटेल स्टेट डायग्राम. State diagram are used to capture the behavior of the system since it is a behavioral modeling.
So, state diagram are very useful. UML state machine diagram can be used to model the behavior of the class, a subsystem, a package or even an entire system. It is also called as state chart or state transition diagram. तो स्टेट मशीन डायग्राम को स्टेट चार्ट या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी कहते हैं. नाउ स्टेट चार्ट डायग्राम प्रोवाइड अस एन एफिशिएंट वे टू मॉडल द इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन that occur within the external entities and the system. These diagrams are used to model the event based system. A state of an object is controlled with the help of an event. तो ऑब्जेक्ट जो भी स्टेट रहेगा उसको हम किसके हेल्प के थ्रू कंट्रोल करते हैं, इवेंट के थ्रू. एक्चुअली क्या होता है, कोई भी स्टेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंट स्टेट में रहता है. जो जितनी टाइप की डिफरेंट स्टेट होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इवेंट के थ्रू उसके थ्रू कवर करते हैं. तो यहाँ पे स्टेट मशीन डायग्राम में ही देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप के स्टेट मशीन डायग्राम होते हैं, बिहेवियरल स्टेट मशीन एंड प्रोटोकॉल स्टेट मशीन. बिहेवियरल स्टेट मशीन इट क्या काम करता है, बिहेवियरल स्टेट मशीन कैप्चर द बिहेवियर ऑफ एन एंटिटी दैट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सिस्टम. Now, it is used to represent the specific implementation of an element. The behavior of a system can be modeled using behavioral state machine diagram. तो यहाँ पे बिहेवियर सिस्टम के बिहेवियर को बताने के लिए हम बिहेवियरल स्टेट मशीन डायग्राम का यूज करते हैं, है ना. और सेकेंड टाइप होता है प्रोटोकॉल स्टेट मशीन. दीज प्रोटोकॉल स्टेट मशीन, दीज डायग्राम आर यूज टू कैप्चर द बिहेवियर ऑफ अ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल स्टेट मशीन से बिहेवियर ऑफ ए प्रोटोकॉल. नाउ द इट रिप्रेजेंट द हाउ द स्टेट ऑफ प्रोटोकॉल चेंजेज अकरिंग द इवेंट. इवेंट चेंज होगी तो प्रोटोकॉल की स्टेट कैसे चेंज हो रही है, इसको भी हम यहाँ पे इसके थ्रू देखते हैं, प्रोटोकॉल स्टेट मशीन के थ्रू. नाउ इट ऑल्सो रिप्रेजेंट कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेज इन द सिस्टम. प्रोटोकॉल स्टेट मशीन also do not represent the specific implementation of the element. तो यहाँ पे ये पॉइंट है नोट करने वाला कि ये इट डू नॉट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे. नाउ वाई स्टेट मशीन डायग्राम्स आर यूज, द क्वेश्चन अराइज वाई स्टेट मशीन डायग्राम आर इज यूज्ड. स्टेट चार्ट डायग्राम और स्टेट मशीन डायग्राम इज यूज्ड टू कैप्चर द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम. State machine diagram are used to represent the behavior of an application. An object goes through various state during its lifespan. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसका जो लाइफ स्पैन होता है उसमें वो कई सारी स्टेट चेंज करता है ना. द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन अनटिल द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड. और जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता उसका लाइफ स्पैन एग्जिस्ट करेगा, परसिस्ट करेगा. नाउ द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम द मल्टीपल स्टेट depending upon the event that occur within the object. Next is the each state represent some unique information about the object. State chart diagram, state machine diagram are used to design interactive system that respond to either internal or external event. State chart diagram visualize the flow of execution from the state to another state, one state to another state of an object. The primary purpose of a state chart diagram is to model interactive system and define each and every state of an object. तो ये है हमारा सबसे मेन टास्क स्टेट चार्ट डायग्राम का. प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टेट चार्ट डायग्राम टू मॉडल टू इंटरेक्टिव सिस्टम एंड द डिफाइन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ एन स्टेट को डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं स्टेट चार्ट डायग्राम का. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. These are the some notation and symbol for state machine. First symbol is the initial state. Initial state के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. This circle और elliptical डार्क सर्कल होगा यहाँ पे. Now second one is the for the state box. Third one is the for decision box and final state को represent करने के लिए हम इस टाइप के ये जो कवर फिल सर्कल है इसके साथ में एक और फाइनल स्टेट को डिफाइन करते हैं इस तरीके से. Now one by one we can explain all these four type of notation and symbol. First is the initial state. Initial state symbol is used to indicate the beginning of the state machine. It is represented as dark
elliptical form, this is, and the end portion for the final state the symbol is used to indicate the end of the machine, and इसके पास में इस तरीके से एक और बना दिया जाता है. Now decision box, if we have some decision then we use some decision box. Depending upon the result of an evaluated guard condition, a new path is taken from program execution. Transitions, a transition is a change in one state to another state. ट्रांजिशन कैसे हम शो करेंगे, चेंज ऑफ वन स्टेट फ्रॉम अनदर स्टेट विच इज अकर्ड बिकॉज ऑफ सम इवेंट. अच्छा क्या होता है बेसिकली, जब एक इवेंट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज ऑफ इवेंट होगा तो हम यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांजिशन को शो करेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया. द ट्रांजिशन कॉजेज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ मूविंग टुवर्ड द स्टेट बॉक्स. It is a specific movement in the lifespan of an object. It is defined using some conditions or a statement within the classifier body. It is used to represent any static as well as dynamic situation. It is denoted using rectangle with round corners. As the name suggests, the name of a state is written inside the rounded rectangle. The name of a state can also be placed outside the rectangle. This can be done in the case of composite or sub-machine state. One can either place the name of a state within the rectangle or outside the rectangle in a tabular box. One cannot perform both at the same time. एक साथ दोनों को perform नहीं किया जा सकता. A state can be either active or inactive. When a state is in the working mode, it is active. As soon as it stop executing the transition, it goes to the another state. The previous state becomes, and then previous state becomes inactive and the current state becomes active. So जैसे ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो पहले वाली स्टेट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, नेक्स्ट वन इज द एक्टिव स्टेट. Type of state, there are in UML there are various types of state, basically three types: simple state, composite state and sub machine state. Simple state simple state basically they do not have any sub state, जिसका कोई सब स्टेट ना हो वो सिंपल है. Now composite state, these type of state can have one or more than one sub state. कंपोजिट में एक या एक से ज़्यादा सब स्टेट होंगे. नाउ सब मशीन स्टेट में क्या होता है, दीज स्टेट सिमेंटिकली इक्वल टू द कंपोजिट. सब मशीन स्टेट सिमेंटिकली कंपोजिट स्टेट की तरह होते हैं. एंड अनलाइक द कंपोजिट स्टेट वी कैन रीयूज द सब मशीन स्टेट, है ना. तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, सब मशीन स्टेट में और कंपोजिट स्टेट में. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, drawing a state chart diagram. How to draw a state chart diagram? The name of a state transition must be unique. First of all, you decide the name of a state transition and that will be unique. The name of a state must be easily understandable and describe the behavior of the system. So the name you choose, the state must be understandable form. And if there are multiple objects, then only essential objects should be implemented. There are various objects, then you can use only the essential part, you use only the essential object, and the proper name for each transition and event must be given. और एक proper नाम भी आपको given उसका देना है ट्रांजिशन का. Then these are the some guideline for the drawing a state chart diagram. Now when to use the state diagram, कब आपको यूज करना है स्टेट डायग्राम. State diagram are used to implement real life working model and object oriented system in depth. जब भी आपको रियल लाइफ वर्किंग मॉडल की बात करनी है, उसके बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डेप्थ में आपको प्रोसीड कराना है, तब आप इसको यूज करेंगे स्टेट डायग्राम को. दीज डायग्राम आर यूज टू कंपेयर द डायनेमिक एंड स्टैटिक नेचर ऑफ ए सिस्टम बाय कैप्चरिंग द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. State chart diagram are used to capture the changes in various entity of the system from start to end.
These are used to analyze how an event can trigger change with multiple state of the system. So, these are the points where when we use the state chart diagram. Now, this is an state chart diagram. This is a starting point. This is a starting point. Start. So, we can written here begin. Now, basically what is this? This state chart diagram represent the user authentication process. How we authenticate user. आपने देखा होगा यूजर जब आप गूगल पे लॉगिन करते हैं जीमेल पे, तो वहाँ पे सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है. पासवर्ड यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने एंटर किया, जब आपने दोनों उसका सबमिट आप करेंगे तो वो ऑथेंटिकेट होता है सर्वर के थ्रू. तो वहाँ पे बस यहाँ पे मैंने क्या इस स्टेट चार्ट डायग्राम में क्या है बेसिक डिफरेंस, यहाँ पे एक OTP वैलिडेशन का प्रोसेस है, जबकि गूगल पे OTP वैलिडेशन का प्रोसेस नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, स्टार्ट बिगिन, ये स्टार्टिंग है, एंटरिंग द OTP. इफ़ OTP इज वैलिड देन एंड ओनली देन यूजर ऑथेंटिकेशन इज प्रोसेस्ड. अदरवाइज OTP इज फॉल्ट, OTP वैलिडेशन इज नॉट false, then it move towards the starting process. So, this is a state chart diagram for representation of user authentication. Now, state machine example. State machine example, this is an overall machine bank ATM example. In this we can start here. This is an off condition, state machine bank ATM. Initially when it is turn off or shut down, it is turn off or shut down, and when this is a starting process, we start here, start, we start here. Okay. Now, turn off or shut down, for it when we on the switch on the ATM, it goes to the self test and then move toward in idle condition. जब हम ATM को स्टार्ट करेंगे, पहले तो ये ऑफ मोड में होगा, टर्न ऑफ शट डाउन मोड में, देन आफ्टर व्हेन आफ्टर सम एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस और इट मूव टुवर्ड द इन आइडल स्टेट. आइडल स्टेट में है. अब आइडल स्टेट में करने के बाद अब क्या हो सकता है, जब हम भी इसमें एंट्री, जब हम कार्ड इसमें रीड करना है, एक प्रोसेस होता है ATM में, जैसे ही आप कार्ड रीड करते हो, एंट्री करते हो, तो पहला प्रोसेस होता है रीड कार्ड का. देन user in this year, this is a user, when it insert the card, then first in the read card और eject card. तो दो प्रोसेस होंगे, या तो कार्ड रीड हो जाएगा या कार्ड आपका उस समय रीड नहीं होगा. देन यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, तो ये प्रोसेस हो रही है ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस में अगर हम ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, रीड कार्ड वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, इट फेल्योर एंड देन मूव टुवर्ड द रेडी स्टेट, बिगिन स्टेट. तो यहाँ पे कस्टमर ऑथेंटिकेशन, दिस इज द स्टार्टिंग प्रोसेस. देन आफ्टर कस्टमर ऑथेंटिकेशन, सेलेक्टिंग ट्रांजेक्शन एंड देन ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट. दिस इज द ओवरऑल ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज द फॉर ATM process. If this is out of service, there are some other process are there. If it is out of service, then move toward the off state. Then self test, if this self test perform false result means failure, then it either in move out of service or some maintenance work is required. So, these are the state, this is a complete state machine example of ATM, state chart example of bank ATM. Now, some another example, this is toaster for electric toaster, state machine chart for electric toaster. In this here, in this again we have started the here, we start the process here, and in this when you turn on the machine, power on, the entry or thermometer on the up temperature differ or differ means this is a स्टेट. इसमें क्या होगा, जब आपने पावर ऑन किया, जब आप पावर ऑन करेंगे तो थर्मोमीटर टेम्परेचर राइज करेगा. टेम्परेचर राइज करने के बाद आप उसमें क्या करना है, एंट्री, हीटर और एग्जिट, पुल आउट ब्रेड, उसमें ब्रेड इंसर्ट करेंगे टोस्टर में. देन ऑन ओनली आफ्टर सम टाइम
ब्रेड इंसर्ट करने के कुछ समय के बाद वो आइडल स्टेट में आ जाएगा एंड टर्न ऑफ द हीटर. तो देयर इज सम अपर लिमिट और सम लोअर लिमिट ऑल्सो फॉर ऑपरेटिंग द टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर. तो यहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया हुआ है. आइडियल कंडीशन में कब आएगा? आइडियल कंडीशन में एक बार वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो हम उसको यहाँ पे पावर ऑफ का भी ऑप्शन हो जाएगा. ऑटो कट का ऑप्शन फीचर होता है, उसमें पावर ऑफ हो जाएगा. देन लोअर लिमिट उसकी में कुछ होगी कि इससे कम पे ब्रेड जो है वो प्रोसेस नहीं होगा. तो यहाँ पे ये दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप इस स्टेट के पार्ट में दिखाओगे. आफ्टर दैट turn off and power off, this is the your final state. So these are the some state machine chart example. These are toaster example, bank ATM example, authentication process example. These are 3 example for state chart. स्टेट चार्ट डायग्राम को बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और स्टेट चार्ट में UML जो हमें 3 टाइप के देता है. मेनली UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में हमें 3 टाइप के स्टेट मिलते हैं. सिंपल स्टेट में कोई सब स्टेट जहाँ पे नहीं हो गया. आपने देखा ATM में कुछ ऐसे स्टेट भी थे ATM के एग्जांपल में जहाँ कोई सब स्टेट फॉलो नहीं हो रहा था. कंपोजिट स्टेट में क्या हो रहे थे? कंपोजिट स्टेट में एक से ज़्यादा स्टेट होते हैं. देयर आर दीज टाइप ऑफ स्टेट कैन हैव मोर देन वन सब स्टेट एंड कंपोजिट स्टेट विथ 2 और मोर सब स्टेट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल स्टेट. यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा आप कि ये इस तरीके से ऑर्थोगोनल स्टेट को भी शो करता है. जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट होते हैं वहाँ पे ऑर्थोगोनल स्टेट को हम बोलते हैं और ये कंपोजिट स्टेट का पार्ट होता है ऑर्थोगोनल स्टेट. सब मशीन स्टेट में क्या होता है? सब मशीन स्टेट में सिमेंटिकली दी सब मशीन स्टेट आर सिमेंटिकली इक्वल टू द कंपोजिट स्टेट. अनलाइक द कंपोजिट स्टेट वी कैन रीयूज द सब मशीन स्टेट. अब यहाँ पे सब मशीन स्टेट में कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब मशीन स्टेट एंड द कंपोजिट स्टेट. द बेसिक डिफरेंस इज दोनों सिमेंटिकली इक्वल हैं. कंपोजिट स्टेट की बात कर लें या फिर हम सब मशीन स्टेट की बात करें, सिमेंटिकली इक्वल हैं. बट कंपोजिट स्टेट में वी कैन रीयूज द सब मशीन स्टेट. यहाँ पे क्या होता था? अनलाइक द कंपोजिट स्टेट वी कैन रीयूज द सब मशीन स्टेट. ये बेसिक एक लाइन है जहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है. नाउ कैसे ड्रॉ करते हो स्टेट चार्ट डायग्राम? तो स्टेट चार्ट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कई सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको बताया. स्टेट ट्रांजिशन, नेम ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन मस्ट बी यूनिक. नेम आपको यूनिक रखना है. नेम ऑफ स्टेट मस्ट बी यूनिक का मतलब जिससे आप अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो एंड दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द एन स्टेट. सपोज करो कोई भी स्टेट, मैंने बैंक ATM का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और बैंक ATM में मैंने कार्ड रीड किया, कार्ड इंसर्ट किया, तो मैंने एक स्टेट ड्रॉ की. दिस इज ए स्टेट. ATM वाले एग्जांपल का ही मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ. मैंने ये स्टेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, इंसर्ट कार्ड, इंसर्ट कार्ड, ये एक स्टेट हो गया इंसर्ट कार्ड. अब इंसर्ट कार्ड का ये इस स्टेट का नाम क्या है? इंसर्ट कार्ड. एंड इट मस्ट बी नेम इज यूनिक एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल. इस स्टेट को देखते ही पता लग रहा है कि ये क्या काम करेगा. कार्ड इंसर्ट वाली स्टेट है और इसके बाद जो प्रोसेस होने जा रहा है वो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होने जा रहा है. तो सबसे पहले आपको क्या नाम रखना है कि स्टेट ट्रांजिशन मस्ट बी यूनिक एंड देन सेकेंड वन इज द ईजिली अंडरस्टैंडेबल बिहेवियर ऑफ द स्टेट. इफ अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट के केस में देन ओनली इसेंशियल ऑब्जेक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. केवल इसेंशियल ऑब्जेक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंट आपको करने हैं. प्रॉपर नेम ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड इवेंट मस्ट बी गिवन. यहाँ पे मैंने नाम इंसर्ट स्टेट दिया है तो ये एक प्रॉपर नाम है जिससे कि आप तुरंत ही आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टेट को. देन व्हेन टू यूज़ द स्टेट डायग्राम. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब यूज़ करना है स्टेट डायग्राम. तो स्टेट डायग्राम आर यूज टू इम्प्लीमेंट रियल लाइफ वर्किंग मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम इन डेप्थ. जैसे रियल लाइफ वर्किंग मॉडल में मैंने आपको इलेक्ट्रिक टोस्टर का एग्जांपल दिया. अदर एग्जांपल बैंक ATM, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इन गूगल, ईमेल टाइप, दीज टाइप और एग्जांपल आर द रियल लाइफ एग्जांपल.
these and these diagram are used to state diagram are used to compare the dynamic and static nature of a system and capturing the डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे आपको डायनेमिक, ये जो बिहेवियरल डायग्राम है ना, ये दोनों के बीच स्टैटिक एंड डायनेमिक नेचर को बताता है। शॉर्ट स्टेट चार्ट डायग्राम आर यूज टू कैप्चर द चेंज इन वेरियस एंटिटी ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और जो स्टार्ट से लेके एंड तक जो कई सारी एंटिटी हैं उनके जो चेंजेज आए हैं वो सब हमें बताएंगे। दे आर यूज टू एनालाइज हाउ एन इवेंट कैन ट्रिगर चेंजेज विद मल्टीपल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये एग्जाम्पल मैंने आपसे डिस्कस कर लिया यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टेट मशीन। स्टेट मशीन एग्जाम्पल मीन्स बैंक ATM का एग्जाम्पल। ये यहाँ पे आप कई सारे स्टेट मैंने गिवन कर दे रखी हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन से प्रोसेस में हर स्टेट अपने आप में ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है कि क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस स्टेट के नाम से ही पढ़ के सेल्फ टेस्ट मीन्स अगर वो मशीन फुल अगर दोबारा सेल्फ टेस्ट होता है मीन्स आइडल कंडीशन, आइडल स्टेट में भी जा सकता है और फेलियर भी हो सकता है, मेंटेनेंस स्टेट में भी जा सकता है। मेंटेनेंस से अगेन सेल्फ टेस्ट में पॉसिबिलिटी है, देयर इज सम पॉसिबिलिटी टू मूव टुवर्ड द सेल्फ टेस्ट। सो दीज आर द सम बेसिक स्टेट मशीन एग्जाम्पल ऑफ बैंक ATM। नाउ this is again a state machine example of electric toaster, and hopefully all these example you आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने, आपको समझ में आया होगा। देन मूविंग टुवर्ड द टोस्टर एग्जाम्पल, ये भी हो चुका है। होपफुली स्टेट बिहेवियरल मॉडलिंग के केस में स्टेट चार्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं ये हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया। दीज आर सम रेफरेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिजाइन, James Rambog, Greedy Booch, James Rambog and Ivar Unified Modeling Language and Object Oriented Programming Language with C++, E. Balaguruswamy. Thank you.